हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल लेट्स लर्न टुगेदर। पिछले वीडियो में हम लोगों ने देखा था कि एलिमेंट क्या होता है, टैग क्या होता है और टैग के यूज के बारे में जाना था। इस वीडियो में हम लोग कुछ फॉर्मेटिंग टैग्स के बारे में जानेंगे और एट्रीब्यूट क्या होता है और व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन टैग एंड एट्रीब्यूट। टैग और एट्रीब्यूट के बीच में डिफरेंस क्या है, इस वीडियो में हम लोग ये सारी चीजें जानने वाले हैं। सो लेट्स स्टार्ट आवर टॉपिक। So let's see what are the different HTML tags that are used for formatting the text. कौन-कौन से different types के tags का use होता है text को format करने के लिए। सबसे पहले आता है bold text. How we can make the text bold? We can use a tag that is known as B tag. Which tag we can use? We can use a B tag which is used to make the text bold. B का जब हम use करते हैं तो it means कि वो एक तरह का tag है और वो कैसा tag है, वो कंटेनर टैग है क्योंकि इसका एक स्टार्टिंग भी होगा, इसका एक क्लोजिंग भी होगा। ठीक है, तो ये बोल्ड बी टैग का यूज किस लिए होता है? टेक्स्ट को बोल्ड बनाने के लिए। आइए एग्जांपल के थ्रू हम इसका देखते हैं, हाउ वी कैन मेक द टेक्स्ट बोल्ड। फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल सेव द फाइल, वी विल गिव द नेम formatting .html, okay, and we will save it on our desktop and then we will click on save. After saving, why we have saved first? Because जब हम सेव कर लेते हैं पहले तो वो आपको hints देगा। जब हम ये लिखेंगे it will provide you HTML head hints like that। ठीक है, आइए देखते हैं। सबसे पहले we will write h, now look it is giving me that hints HTML, then we will write head, then we will write title, in title we will keep the heading formatting tag, okay, and then after we will close the title. Now we will close the head also. Then after we will open the body, and in body tag we will write the, suppose we have to make the text bold, so this is what we will write. We will write this is bold text, okay. Now we will close the body. अब इस बॉडी को हम लोगों ने क्लोज भी कर दिया। After closing the body, we will close the HTML also. Now we will save by using Control S. जब इसको हम सेव कर चुके होंगे तब ये हमारा एक आइकन पे बन के आएगा हमारे इस पे फॉर्मेटिंग करके। Look, this icon is available in our desktop. So have a double click over this icon. As we have a double click over this icon, it will show that text, this text, but this text is not bold. ये text अभी क्या है हमारा bold नहीं है क्योंकि हम लोगों ने यहाँ पे कोई formatting tag का use नहीं किया। Now we will use the tag bold B. We will use this tag, we will use the B tag for making the text bold. और शुरू में वीडियो में बताया था मैंने शुरू में कि bold tag कैसा tag है? कंटेनर tag है, तो इसको हम लोग close भी करेंगे। क्या करेंगे? Close. Now save it. Now refresh it. Now look, the text become bold. अब ये टेक्स्ट कैसा हो गया? बोल्ड हो गया। सो इसलिए हम लोग बोल्ड टैग बी टैग का यूज कर सकते हैं। बी टैग इज यूज फॉर मेकिंग द टेक्स्ट बोल्ड। बी टैग का किस लिए यूज होता है? टेक्स्ट को बोल्ड करने के लिए। नेक्स्ट, आवर इटैलिक, हाउ वी कैन मेक द टेक्स्ट इटैलिक। हम लोग इटैलिक फॉर्म में कैसे टेक्स्ट को लिख सकते हैं? वी कैन राइट द टेक्स्ट बाय यूजिंग लाइक दिस। सपोज हियर वी यूज a tag that is this tag, we will use here I. For making the text italic, we will use the tag I. As this tag is a container tag, so we will open this tag and we will close this tag also. ये tag कैसा है? Container tag है, तो इसलिए इस tag को open भी करेंगे और इस tag को close भी करेंगे। उसके बाद हम क्या करेंगे? इसको save करेंगे by using Control S. आई बात समझ में? Then we will refresh our. Now, as we refresh, look, the style, the format of the text got changed. It is in the italic form. अभी किस फॉर्म में आ गया? इटैलिक फॉर्म में आ गया। उसके बाद हम देखते हैं कौन सा टैग? अंडरलाइन टैग। अब हमको टेक्स्ट को अंडरलाइन करने के लिए किस टैग का यूज करेंगे? We will use U tag. This tag is used for making the text underline. U tag. Okay. So let's see with an example. So what we will do? We will use here U.
So U is also a container tag. So we will have a closing and a starting and closing tag also. Look, here the whole text is got underlined. यहाँ पे ये सारा text क्या हो गया? Underline हो गया. By using this tag, by using U tag. So 3 tags we have learned till now. First one is the B tag, which is used to make the text bold. The second one is the I tag, which is used to make the text italic. And the third one is U tag, which is used to make the text underline. तीसरा कौन सा टैग है? U tag है, जो टेक्स्ट को क्या करने के लिए होता है? टेक्स्ट को अंडरलाइन करने के लिए होता है. नाउ वी विल सी द फोर्थ वन, स्ट्राइक टेक्स्ट. हाउ वी कैन, मतलब कि अगर किसी टेक्स्ट के बीच में अगर हमको लाइन देना होता है, स्ट्राइक थ्रू द टेक्स्ट, व्हाट वी विल यूज अ टैग दैट इज नोन एज स्ट्राइक. ठीक है, अभी तो अंडरलाइन का मीन्स कि हम उस टेक्स्ट के नीचे लाइन दे रहे थे, बट स्ट्राइक का जब हम यूज करेंगे तो वो उस टेक्स्ट के बीच में लाइन देगा. सो लेट्स सी विद एन एग्जांपल. सो हियर वी विल यूज strike. And here we will also use the strike as these all are what? These all are container tag. Okay, after using this, Control S and then go to the your browser and refresh it. Now look, पिछले अंडरलाइन में क्या हुआ था? वो नीचे में अंडरलाइन कर रहा था. जैसे ही हमने स्ट्राइक का यूज किया, वो टेक्स्ट को क्या किया? वो टेक्स्ट को बीच से एक लाइन दे दिया, टेक्स्ट के बीच में एक लाइन आ गया. तो इस तरीके से हम इन सब टैग का यूज कर सकते हैं हमारे HTML एलिमेंट में. आइए अब प्री टैग का यूज देखते हैं कि प्री टैग का यूज किस लिए किया जाता है. प्री टैग का यूज फॉर्मेट को प्रिजर्व करने के लिए होता है. मींस कि जिस फॉर्मेट में अगर हम कोडिंग साइड में लिखेंगे, उसी फॉर्मेट को हम अपने ब्राउजर पे डिस्प्ले कराना चाहते हैं, तो उसको प्रिजर्व करने के लिए हम प्री टैग का यूज करते हैं. Okay, so pre tag is used for what? Pre tag is used to preserve the formatting of the source document. Source document means which we have written in our coding side. Means उसका मतलब कि जब हम जो चीज हम अपने कोडिंग साइड पे लिखे हैं, उसको सिमिलर पैटर्न में, सिमिलर फॉर्मेट पे हम अपने वेब ब्राउजर पे डिस्प्ले कराना चाहते हैं, तो हम किस चीज का यूज करेंगे? We will use a tag that is known as pre tag. And pre tag is also a container tag. Pre tag कैसा है? कंटेनर टैग है. तो जब ये कंटेनर टैग होगा तो इसका एक स्टार्टिंग भी होगा और इसका एक क्लोजिंग भी होगा. ठीक है, आइए देखते हैं इसको एग्जांपल के थ्रू. सो जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं कि बॉडी में हम लोगों ने 2 टेक्स्ट लिखा है. पहला टेक्स्ट क्या है? हेलो इंडिया. ठीक है, दूसरा सेंटेंस क्या है? हेलो स्टूडेंट. 2 सेंटेंस हमने लिखा है 2 अलग अलग लाइन में. लेकिन जब इसको हम वेब ब्राउजर पे डिस्प्ले कराएंगे तो क्या ये 2 अलग अलग लाइन में आ रहा है या नहीं आ रहा है? So let's see. So first of all we have to save it, Control S, and then we will refresh it. यहाँ पे हम लोगों ने इसको 2 अलग अलग लाइन में लिखा था, लेकिन यहाँ पे वो 2 अलग अलग लाइन में नहीं आ रहा है. तो यहाँ पे उसने क्या किया? जिस फॉर्मेट पे हम लोगों ने एक सोर्स डॉक्यूमेंट पे लिखा है, कोडिंग साइड में लिखा, उसको वो प्रिजर्व नहीं कर रहा है. वो क्या कर रहा है कि वो दोनों को एक ही लाइन समझ के वो उसको रिप्रेजेंट कर रहा है हमारे वेब ब्राउजर में. तो इसको प्रिजर्व करने के लिए वी विल यूज अ प्री टैग. दिस टैग वी विल यूज अ प्री टैग. ओके, अब प्री टैग का हमने बताया था कि प्री टैग एक कंटेनर टैग है, तो इसका एक क्लोजिंग भी होगा. ठीक है, नाउ वी विल सेव इट. आफ्टर सेविंग हैव रिफ्रेश इट. जब आप इसको रिफ्रेश करोगे, देखोगे कि आप जैसे आपने लिखा था वो सिमिलर पैटर्न पे वो अपने वेब ब्राउजर पे भी डिस्प्ले हो रहा है. मींस कि आप जिस तरीके से अपने कोडिंग साइट पे लिखोगे, अपने एडिटर पे लिखोगे, वो सिमिलर पैटर्न पे वो आपको अपने वेब ब्राउजर पे भी डिस्प्ले करेगा. लुक, आफ्टर प्री टैग लेट्स सी हाउ वी कैन मेक द वर्ड. वी कैन यूज पावर एंड बेस. सुपरस्क्रिप्ट और सबस्क्रिप्ट का हम यूज कैसे करते हैं हमारे HTML डॉक्यूमेंट में, तो इसमें कैसे लिख सकते हैं, किस टैग का यूज करके हम पावर को रिप्रेजेंट कर सकते हैं और बेस को रिप्रेजेंट कर सकते हैं. वी कैन यूज सुपरस्क्रिप्ट फॉर मेकिंग द पावर. जैसे a to the power 2 लिखा रहता है, उसको अगर लिखने के लिए आप किस टैग का यूज कर सकते हैं? वी कैन यूज SUP. SUP stand for superscript. For making the text superscript, we can use the tag that is known as SUP. SUP. And for making, अगर उसको आपको बेस में लाना है तो आप किस टैग का यूज कर सकते हो? SUB.
we can use the tag sub sub and these two tags are container tag. ये दोनों टैग्स क्या है, कैसे हैं, ये दोनों के दोनों टैग क्या है, कंटेनर टैग है, ठीक है, मतलब कि इसका स्टार्टिंग भी होगा और एक क्लोजिंग भी होगा। तो सुपर स्क्रिप्ट एसयूपी टैग का यूज होता है टेक्स्ट को सुपर स्क्रिप्ट बनाने के लिए, मतलब टेक्स्ट को पावर के फॉर्म में लिखने के लिए। एसयूपी सब 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 टैग का यूज किस लिए होता है, सब स्क्रिप्ट टेक्स्ट बनाने के लिए। सब स्क्रिप्ट टेक्स्ट बनाने के लिए मीन्स उसको उसको बेस में लिखने के लिए। सपोज आप किसी भी H2SO4 लिखते हो तो 2 आपका कहाँ है, बेस में है, तो उस बेस को क्रिएट करने के लिए आप सबस्क्रिप्ट का यूज कर सकते हैं। सो लेट्स सी विद एन एग्जांपल। So here we will write, suppose we have to use the superscript. First of all, we will write A and then which we have to make the, जिसको भी आपको पावर या बेस में लाना, उस पूरे वर्ड को, उस पूरे टेक्स्ट को आपको सब और एसयूबी के बीच में लिखना होगा। सपोज कि अगर हमको 2 को ए के पावर में लाना है, ए के पावर में a टू दी पावर 2 लिखना है, तो 2 को हमको क्या लिखना होगा, SUP सब लिखना होगा और इस 2 को सब के बीच में लिखना होगा, ठीक है। तो अब इस 2 को आप लिख करके सबके बीच में जब आप सेव करोगे तो क्या होगा, वो आपका पावर में शो होने लगेगा। लो, ओके। अगर आप चाहते हो कि और भी कुछ a टू दी पावर, सपोज कि a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर आप लिखना चाहते हो तो b, देन आफ्टर वी विल राइट सब, अब फिर सबके बीच में 2 लिखेंगे, ठीक है। अब इस सबको क्लोज कर देंगे, ओके, एंड देन आफ्टर वी विल सेव इट एंड रिफ्रेश इट। लुक, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो इस तरीके से हम यूज कर सकते हैं सब स्क्रिप्ट का, मतलब जब पावर बनाना होता है तो किस टैग का यूज करेंगे, वी विल यूज SUP sub. We will use the tag that is known as sub tag. Okay. Now to make the text in the base form, so we can use the sub tag. We can use the sub tag. Okay. Now look, suppose कि H2SO4 लिखना है, तो we will write first of all H2O लिखना, वाटर, केमिकल फॉर्मूला वाटर H2O, एंड 2 क्या होगा, वो बेस में होगा, तो वी विल यूज SUB sub and then we will write 2 and then we will close the sub also. Yeah, H2 and then after O will not be in the, O is not in the base form, so we will not use any subscript within the subscript. Okay, so after this we will save it and refresh the browser. As you will refresh, you will see that it is H2O. Okay, the 2 is in the form of base. Okay, so for changing the line, we can use BR tag here. So अब जब BR का यूज करोगे तो ये नीचे आ जाएगा, ठीक है। तो सुपर स्क्रिप्ट जब किसी टेक्स्ट को, किसी नंबर्स को आपको जब पावर के फॉर्म में लिखना है तो वी विल यूज द सब टैग, और जब हमको किसी नंबर या टेक्स्ट को बेस के फॉर्म में लिखना है वी कैन यूज द सब। ओके, सो दीज आर द 2 टैग्स व्हिच आर यूज्ड फॉर मेकिंग बेस एंड पावर। ओके, आइए अब देखते हैं कि किसी भी टेक्स्ट को आपको जब हाईलाइट करके शो करना होता है, जैसे कि हम हाईलाइट करते हैं किसी कोई पर्टिकुलर चीज को हमको हाईलाइट करना होता है तो हम किसी कलर से उसको रिप्रेजेंट करते हैं। तो यहाँ पर भी जब किसी टेक्स्ट को आपको हाईलाइट करना होगा तब आप किस टैग का यूज करेंगे, वी विल यूज द टैग मार्क। which tag we will use, we will use the tag mark। किसी भी टेक्स्ट को हाईलाइट करने के लिए किस टैग का यूज होगा, मार्क टैग का होगा यूज। ओके, लेट्स सी विद एन एग्जांपल। So first of all, let's delete all these. Suppose I write this is marked text. Okay, तो यहाँ पे मार्क को हम चाहते हैं कि ये हाईलाइट हो, ये वर्ड क्या हो, मार्क जो हो, जैसे यहाँ पे ग्रीन दिख रहा है उसी तरीके से किसी कलर में वो हमारे ब्राउजर पे भी दिखे। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, वी विल यूज द टैग दैट इज नोन एज मार्क। किस टैग का यूज करेंगे, मार्क टैग का। और मार्क टैग कैसा है आपका, मार्क टैग वो हमारा कंटेनर टैग है। सो वी विल क्लोज दिस टैग आल्सो एंड आफ्टर राइटिंग ऑल दिस वी विल सेव इट। अब इसको सेव कर लेने के बाद आप अपने ब्राउजर पे जाइए, उसको रिफ्रेश कीजिए। तो लुक हियर, मार्क जो वर्ड है वो क्या हो रहा है, ये हाईलाइट हो रहा है किसी कलर के, तो मार्क किया हुआ है। तो यहाँ पे हम किसी वर्ड को, किसी टेक्स्ट को हाईलाइट करने के लिए हम कौन से टैग का यूज कर सकते हैं, वी कैन यूज द टैग मार्क। किस टैग का यूज कर सकते हैं हम लोग, मार्क टैग का यूज कर सकते हैं। अभी तक हम लोगों ने देखा था
कि कैसे हम डिफरेंट HTML टैग्स का यूज करके टेक्स्ट को फॉर्मेट कर सकते हैं। ठीक है, अब जानते हैं एट्रीब्यूट के बारे में कि एट्रीब्यूट क्या है और इसका यूज कैसे होता है। तो एट्रीब्यूट क्या है? ये एक तरीका है जिसके थ्रू हम क्या कर सकते हैं, हम उस HTML टैग और एलिमेंट की प्रॉपर्टीज को डिफाइन कर सकते हैं, उसके कैरेक्टरिस्टिक्स को डिफाइन कर सकते हैं। तो कौन कौन से डिफरेंट एट्रीब्यूट्स हैं? डिफरेंट एट्रीब्यूट्स आर कलर, अलाइन, हाइट, विड्थ, बैकग्राउंड, बीजी कलर। These are the different attributes which are used in HTML। और भी बहुत सारे एट्रीब्यूट्स हैं जिसका यूज हम लोग स्टेप बाय स्टेप देखेंगे। तो एट्रीब्यूट का मेन मकसद क्या है कि ये किसी भी टैग के प्रॉपर्टीज को डिफाइन करने के लिए होता है, मतलब उसके कैरेक्टरिस्टिक को डिफाइन करने के लिए। किसके कैरेक्टरिस्टिक्स को? टैग के कैरेक्टरिस्टिक्स को डिफाइन करने के लिए किसका यूज करते हैं हम लोग? वी यूज एट्रीब्यूट। ओके, सो अभी आपको क्लियर हो गया होगा कि एट्रीब्यूट क्या है। तो एट्रीब्यूट क्या है? इट इज अ वे फॉर डिस्क्राइबिंग द कैरेक्टरिस्टिक्स और प्रॉपर्टीज ऑफ अ HTML एलिमेंट और टैग। एलिमेंट और टैग की प्रॉपर्टीज को डिफाइन करने के लिए किसका यूज किया जाता है? एट्रीब्यूट का यूज किया जाता है। ठीक है, एक सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है कि एट्रीब्यूट का, बहुत सारे एट्रीब्यूट का हम एक सिंगल टैग के साथ यूज कर सकते हैं। ठीक है, जैसे फॉन्ट, फॉन्ट के साथ हम कलर भी लगा सकते हैं, उसका साइज भी सेट कर सकते हैं। तो एक फॉन्ट क्या हो गया? फॉन्ट वो आपका टैग हो गया। लेकिन कलर क्या हो गया? कलर एट्रीब्यूट हो गया। साइज क्या हो गया? वो भी एट्रीब्यूट हो गया। तो यहाँ पे फॉन्ट एक टैग है, उसके उस टैग के साथ हम कलर का भी यूज कर रहे हैं, साइज का भी यूज कर रहे हैं। तो कहने का मतलब ये है कि हम एक टैग के साथ मल्टीपल एट्रीब्यूट का यूज कर सकते हैं। सो लेट्स सी द एग्जांपल ऑफ हाउ वी कैन यूज द टैग। So here we have written in body font color equal to red and this is text. Okay, तो यहाँ पे font क्या है? ये font आपके, ये font क्या हो गया? ये font एक tag हो गया। ठीक है, अब color क्या होगा? इस tag की properties को define कर रहा है। किस tag की properties को? font tag की properties को define कर रहा है। ठीक है, जब इसको हम सेव कर लेंगे, सेव करने के बाद जब आप इसको रिफ्रेश करके अपने ब्राउजर पे चलाओगे तो वो टेक्स्ट को किस कलर में डिफाइन कर रहा है? रेड कलर में शो कर रहा है। ठीक है, वो किस कलर में शो कर रहा है? रेड कलर में। मीन्स कि यहाँ पे फॉन्ट क्या है? टैग है, और कलर क्या है? एट्रीब्यूट है। तो उसी तरीके से आप यहाँ पे साइज का भी यूज कर सकते हो। ठीक है, तो मल्टीपल एट्रीब्यूट का आप सिंगल टैग के साथ यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो ये एग्जांपल हुआ कि एट्रीब्यूट का कैसे यूज हम लोग करते हैं। आइए अब देखते हैं कि टैग और एट्रीब्यूट के बीच में डिफरेंस क्या है। तो टैग और एट्रीब्यूट के बीच में डिफरेंस क्या है? टैग इज व्हाट? इट इज अ वे ऑफ रिप्रेजेंटिंग द HTML एलिमेंट। ये क्या है? एक तरीका है जिसके थ्रू आप HTML एलिमेंट को रिप्रेजेंट कर सकते हो। आप उस HTML एलिमेंट की कैरेक्टरिस्टिक को रिप्रेजेंट करने के लिए किसका यूज करते हैं? एट्रीब्यूट का यूज करते हैं। टैग क्या है? रिप्रेजेंट करना। किसको रिप्रेजेंट करने के लिए? HTML एलिमेंट को रिप्रेजेंट करने के लिए यूज होता है। लेकिन एट्रीब्यूट किस लिए यूज होता है? एट्रीब्यूट उस HTML एलिमेंट की प्रॉपर्टीज, उस कैरेक्टरिस्टिक्स को डिफाइन करने के लिए HTML एट्रीब्यूट का यूज होता है। ठीक है, तो देखो यहाँ पे एक एग्जांपल के थ्रू, सिर्फ यहाँ पे हम लोगों ने यूज किया p align इक्वल टू सेंटर। तो p इज व्हाट? हियर p इज अ टैग, align is what? align is an attribute, क्योंकि इस पैराग्राफ की प्रॉपर्टीज को, इस पैराग्राफ के फीचर्स को ये डिफाइन कर रहा है align। तो ये align क्या हो गया? ये एट्रीब्यूट हो गया और ये आपका टैग हो गया। उसी तरीके से फॉन्ट क्या? ये टैग है, और कलर क्या है? ये एट्रीब्यूट हो गया। ठीक है, क्योंकि फॉन्ट की कैरेक्टरिस्टिक्स को कौन डिफाइन कर रहा है? यहाँ पे कलर डिफाइन कर रहा है। तो ये डिफरेंसेस है टैग और एट्रीब्यूट के बारे में। मतलब कि एलिमेंट को रिप्रेजेंट करने के लिए टैग का यूज होता है, अब उस एलिमेंट की प्रॉपर्टीज को रिप्रेजेंट करने के लिए एट्रीब्यूट का यूज करते हैं। ठीक है, दूसरा इंपॉर्टेंट चीज कि हम पहले भी मैंने बताया कि हम मल्टीपल एट्रीब्यूट्स का यूज कर सकते हैं एक टैग के अंदर। एक टैग के अंदर हम लोग मल्टीपल एट्रीब्यूट्स को यूज कर सकते हैं, लेकिन एक टैग के अंदर मल्टीपल टैग को हम यूज नहीं कर सकते हैं। ओके, एक टैग के अंदर हम मल्टीपल एट्रीब्यूट को यूज कर सकते हैं, लेकिन एक टैग के अंदर मल्टीपल टैग का यूज नहीं होता है। ठीक है, हर टैग के लिए अलग अलग क्लोजिंग और स्टार्टिंग होना जरूरी है। ठीक है, इसमें एट्रीब्यूट में क्लोजिंग और स्टार्टिंग टैग का कोई जरूरत नहीं है। एक टैग के अंदर आप मल्टीपल एट्रीब्यूट्स का यूज कर सकते हैं। ओके, दिस इज द डिफरेंस बिटवीन टैग एंड एट्रीब्यूट। सो आप लोगों को यहाँ तक सारा कुछ क्लियर हो गया होगा कि क्या होता है टैग, क्या होता है एट्रीब्यूट, क्या होता है एलिमेंट।
ठीक है, कैसे फॉर्मेटिंग टेक्स्ट का यूज कर सकते हैं हम लोग टेक्स्ट को फॉर्मेट करने के लिए, ठीक है, कैसे डिफरेंट टैग्स का यूज करके हम लोग टेक्स्ट को फॉर्मेट कर सकते हैं, ठीक है। ये सारी चीजें आपको इस वीडियो में क्लियर हो गई होंगी। सो नेक्स्ट वीडियो में हम लोग देखेंगे कैसे हम लोग बैकग्राउंड में कलर इंसर्ट कर सकते हैं, कैसे हम लोग इमेज इंसर्ट कर सकते हैं, और भी चीजें जो स्टेप बाय स्टेप हम लोग आगे अगले वीडियो में देखने वाले हैं। सो इस वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। ओके, थैंक यू।